Is the voice audible? And are we on the right platform? So welcome friends to this Facebook Live finally. Now I'll be going the Indian, hello, this is a soft voice it says. Is the voice clear now? Is it clear? Is it clearly audible? Okay, thank you very much. Now there's a problem with Facebook Live that it does not allow screen sharing. So I have done some jugaad, as you can see, that so that I can show my slides and at the same time speak about it. Now we made a small video this morning and it has probably raised expectations, and I'll try and make some sense of things that we generally talk about in statistics. Now in class generally it's a lot easier because I can see people, or when it's a live lecture the physical cues are there, and it's very nice, or it's very easy for us to decide which part to concentrate more and which one to skip, etc, etc. But here the problem is I have to keep watching your comments, so please help me out by putting in the comments as I go, so that I would know which are the areas where you probably need me to expound more, and which are the areas where we can just slightly skip together. Now before I start, ये हिंदी में भी मुझे कहना है, क्योंकि हमारे ऑडियंस उत्तर भारत से भी बहुत हैं छात्र, गोविंद जी ने जैसे बताया, और इस वजह से मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको चलाने की कोशिश करूँगा। स्टैटिस्टिक्स को लेकर काफ़ी कुछ परसेप्शंस हैं। एक परसेप्शन तो ये है, क्लास में ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि भाई ये बड़ा मैथ्स वाला चक्कर है सर, अगर मैथ्स ही पढ़ना था तो हम फिर जर्नलिज्म क्यों पढ़ने आए। और ये थोड़ा सही भी लगता है, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, नंबर देख करके वो जो तारे ज़मीन पर वाली बात आ जाती है, सब तो नंबर बराबर ही लगते हैं, और कुछ इतने सारे टर्म्स इतने ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। स्टैंडर्ड एरर क्या है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ये डिविएशन और एरर में बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा चक्कर है ये काफ़ी हम नॉर्मेलिटी की बातें करते हैं, और फिर एवरेज की बातें करते हैं, और फिर सिग्निफिकेंस की बातें करते हैं। बहुत सारी बातें जो हैं हम उसको एक एग्जैक्ट टर्म के तरीके से ले लेते हैं, उसके तह तक हम लोग शायद नहीं भी जाते हैं। और कारण ये है कि सिर्फ रिजल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्या हो रहा है बिहाइंड द ब्लैक बॉक्स और बिहाइंड द हुड, ये हम लोग उतना ज़्यादा इस पर हम लोग तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो आज का ये जो फेसबुक लाइव है, आई एम थ्रेटनिंग यू, इट विल गो ऑन एज लॉन्ग एज यू वांट मी टू। सो पिछले बार मैंने 3 दिन पहले यही एक आई डिड दिस थिंग विद कलीग्स इन चेन्नई, एंड इट कैरिड ऑन फॉर 1.5 hours. But that depends on the kind of response that we keep on getting as we go along. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चलिए रिसर्च के कुछ बेसिक्स पर ही डिस्कशन करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2 स्क्रीन एक साथ चलेंगी, तो ये बीच बीच में ये एक जैरिंग जैसा ये चीज़ आएगा, तो ये आपको थोड़ा सा इसको you'll have to excuse me for this, because there was no other option. I tried out quite a few options of sharing screens, but then generally those sharing options weren't very useful. So what I decided was to use 3 screens, one for talking, one for this
slides, and another where I can see the comments. So please pardon me if you see me looking elsewhere while the slides are being transferred from one to the other. Now I'm starting off with write the basics. Now this is a question for everybody. Is this slide visible or is it out of focus? I mean, just one of you. If I don't get any comment, I would understand that this is clear to everybody, or this is easily visible. Now this is what we teach in our first day research classes about how we start the research proposal. This is generally for students. How you summarize what are your research questions, and then decide on how to put up a theory on that, and then deciding the methodology and collecting data and etc. etc. That is pretty very basic. Now I'm assuming ये बातें students को भी I'm assuming हमारे students ज़्यादातर PG students हैं, so they would be knowing about most of these things. If I have to put it down discretely into 9 different steps, then this is what the research is. It's not clearly visible. Is it clearly visible now, or do I need to change the focus? Because on my screen I can see very clearly. Can I just have a feedback on this? I'm sorry we are taking some time to set it up, but after this is over, we'll get through. Anyway, I'm assuming that you can see these 9 distinct points. ये 9 basic research basics के point आप देख सकते हैं कि अगर हम पूरे research process को divide करें, is not clearly visible. Oh my God! But I can see very clearly on my screen. Is it something to do with? Is it something to do with your? It is visible, right? I think Jayanta says it is visible. Do I need to zoom it further? Does it make sense? Anyway, we'll have to make sense of whatever we can get through. Yeah, thank you. So if you can see, हम 9 different topics, मैं ये पढ़ता भी जाऊँगा साथ साथ, तो अगर आप स्क्रीन नहीं भी देख सकते हैं, जनरली जब हम कुछ फिगर्स देखेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वरना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये. Okay, thank you. So basically we can divide into these 9 different areas. The first is topic selection. पहले हम डिसाइड करते हैं भाई किस टॉपिक में करेंगे, उस पर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हम उसके ऊपर थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश करते हैं. और फिर आता है हमारा या तो रिसर्च क्वेश्चन या तो हाइपोथेसिस. अब रिसर्च क्वेश्चन किस वक्त आता है, हाइपोथेसिस कब आता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में. रिसर्च डिज़ाइन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो 5वां स्टेप होता है. छठा स्टेप होता है हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं. अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च भी करते हैं तो वहाँ पर भी हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है. 7वां स्टेप है जो मैं बता रहा था, वो था डेटा एनालिसिस का. 8वां है ड्राइंग कंक्लूजन्स, और फाइनली है डिसेमिनेटिंग रिजल्ट्स. अब ये जो 9 चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इसमें सिर्फ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली आता है, वो है डेटा एनालिसिस का एरिया.
लेकिन अगर आप गौर करें, if you see that more clearly, you will find out that a lot of things are dependent on our statistical tools. Like how you collect the data, or even your theoretical the framework or the research questions. So they are interrelated. So on the face of it, it appears as if statistics is not that important, but if you look closely, you will find that a lot of these things are interrelated. तो हम क्यों एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, हम उस पर कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, और फिर कंक्लूजन क्या करेंगे, और फाइनली उस रिजल्ट को डिसेमिनेट कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. Now, before we start, I mean, of course, all of us know that a lot of our field has borrowed from many other academic disciplines, and one of the disciplines is psychology. So, most of psychology-related work in communication has to have some kind of a statistical input there. Now, the problem is that statistics forms a very small portion of our curriculum, and generally, अब मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा स्टैटिस्टिक्स का अभियान स्टार्ट हुआ था लगभग 10-12 साल पहले. वो भी एक आत्मनिर्भरता अभियान था. रिजल्ट में हम जब थीसिस करते थे अपना एमए या पीएचडी का, जनरली हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए दूसरे बंधुओं के पास जाना पड़ता था, और अभी भी काफ़ी ऐसा लोग करते हैं. दे गो टू देयर फ्रेंड्स हु आर मोर कन्वर्सेंट विद स्टैटिस्टिक्स, एंड देन दे ट्राई एंड ask them to do the analysis, etc., etc. Now, the point is that the exact kind of questions that we need to ask, or the exact data that we need to interpret, unless we know what is happening behind the hood, as we say, unless we know these concepts, and unless we can clear this concept. So there are 4 or 5 very important concepts that I'm trying to demystify. If you've seen the this morning, we spoke of demystifying a lot of concepts. So basically, I'll be trying to do, I'll try and demystify some of those concepts. And I'm not sure whether you can see that, but this slide is about inductive and deductive approaches. Now, I'm sure all of you have some idea about, a very bright student coming and saying that, sir, मैंने तो ये theory develop किया, अब इसको कैसे establish करें. और ये हर प्रोफेशन में होता है. जब हम नए नए जर्नलिस्ट बने थे, तो जहाँ भी हम जाते थे वहाँ कोई ना कोई स्टोरी दिखती थी. अरे भाई, ये कार बड़ी गलत जगह पार्क हुई है, ये देखिए, ये यहाँ गलत हो रहा है, इसको तो न्यूज़ में होना चाहिए. वैसे ही जब भी कोई बंदा स्टार्ट करता है, और इससे पहले हमारे मित्र जतिन जी ने बहुत बढ़िया एक थ्योरी का क्लास लिया, तो जब भी बच्चे स्टार्ट करते हैं वो थ्योरी बड़ा आसानी से डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं. सर, ये ऐसा, ये कह रहा है, इसलिए ऐसा होता है, ये एक थ्योरी है. तो ये बड़ा आसान है थ्योरी कहना, लेकिन डेवलपिंग अ थ्योरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स. Now, that kind of research is known as the inductive approach, where you start from specific observations and then you go to broad generalizations. हम डेटा कलेक्ट करके उसमें एक थ्योरी ढूंढ रहे हैं. इसका जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने की कोशिश करूंगा, पता नहीं दिखेगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये बताने की कि हम वहाँ पर एक थ्योरी डेवलपमेंट की कैसे हम अप्रोच करते हैं. और दूसरा है डिडक्टिव अप्रोच, जहाँ पर एक थ्योरी एग्जिस्ट करता है, उस थ्योरी को हम कैसे अपने डेटा के साथ मैच करते हैं. या तो वो डिस्प्रूव होगा, या तो वो हम उस थ्योरी को अप्रूव करेंगे, और दोनों ही तरीकों में ये डेटा एनालिसिस बड़ा कारगर होता है, बड़ा यूजफुल होता है. क्योंकि इवन इफ वी डिस्प्रूव सर्टेन थ्योरीज, ये बात प्रूव हो गई कि वो थ्योरी एक अलग पर्सपेक्टिव में काम कर रही थी, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव में काम नहीं कर रही है. और इंडक्टिव अप्रोच, जैसा मैं आपको बता रहा था, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, जहाँ पर हम डेटा से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको हम थ्योराइज करने की कोशिश करते हैं. नाउ अगेन आई विल रिपीट वन थिंग जो पिछले लेक्चर में जतिन भाई ने भी कहा था, और हमारे इस लास्ट स्लाइड में भी मैं ये कहूँगा, थ्योरी साइंटिफिक तभी होती है जब वो फॉल्सिफाइबल है. अगर वो फॉल्सिफाइबल नहीं है, या फिर अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप उस थ्योरी को नाकार के फॉल्सिफाई कर सके, तब तक वो साइंटिफिक नहीं है. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मैं एग्जांपल की बात कहूँ, तो अगर किसी ने कहा कि भाई उस जंगल में हमने देखा है कि एक भी मोर नहीं है, एक भी मोर नहीं है अगर कहा जाता है,
और अगर एक भी मोर आप देख लेते हैं तो उस थ्योरी को आपने फॉल्सिफाई कर दिया। तो एक भी मोर नहीं है, ये थ्योरी है जो फॉल्सिफाई हो सकती है, और इसीलिए वहाँ पर हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक है। लेकिन अगर हम उल्टा कहें कि अगर कोई कहता है कि नहीं जंगल में एक मोर है और हम ढूंढते रह जाए, शायद वो छुपा हो, शायद वो ऐसी जगह हो जहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा अगर होता है तब फिर वो थ्योरी फॉल्सिफाइबल नहीं है, उसको हम फॉल्सिफाई नहीं कर सकते। तो वो थ्योरी स्टेटिस्टिकली हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वो एक कंजेक्चर है, वो एक स्पेकुलेशन है, और वो एक अलग अलग तरीकों से उसको प्रूव या डिसप्रूव करना होगा। सो फर्स्ट थिंग, इफ you are not able to falsify a theory, then that theory is not scientific, because falsifiability again is a very important concept there. मैं ये फिगर बताना चाह रहा था. The point is I can see on my screen very clearly. I'm not sure whether you can see that, but generally what we do is that we try and make sense of data that we see. मान लीजिए अगर अचानक बिग बॉस देखते देखते हमें लगा कि अरे भाई बिग बॉस में तो लगता है ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये पागल ही आते हैं, तो ये हमारा एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, ये हम इनिशियल थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर हम उसके बाद, पता नहीं ये स्क्रीन में आपको दिखेगा या नहीं, फिर हम ये डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस डाटा के थ्रू हम उस अपने इनिशियल ऑब्जर्वेशन को, यहाँ पर ये एक डबल एरो दिखाई दे रहा है, अपने इनिशियल ऑब्जर्वेशन को उस डेटा के थ्रू हम और रिफाइन करते हैं, और फिर एक थ्योरेटिकल हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। थ्योरी स्टार्ट होने के साथ साथ दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल क्या है, और दूसरी बात यह है कि उस वेरिएबल को मेजर कैसे किया जाए। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं थोड़ी देर बाद ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात पर आऊँगा, तब ये क्लियरली पता चलेगा कि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे डिस्क्राइब करें। हालांकि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी किसी केसेस में, तो मैं आपको छोटा सा एक वो तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, जिससे काफ़ी ये इजी हो जाता है। तो जनरली वेरिएबल्स हम आइडेंटिफाई कैसे करें, वेरिएबल को हम फिर मेजर कैसे करें, क्योंकि उसके थ्रू ही वो फिर हाइपोथेसिस आता है। अब हाइपोथेसिस में बताएंगे तो फिर हम आगे चलते चलते नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग की बात करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी, और मैं 3-4 स्लाइड बाद उस पर आऊँगा। तो बेसिकली हम इनिशियल जब डेटा कोई ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमारा इनिशियल कोई ऑब्जर्वेशन होता है, तब हम उसके थ्रू ये जानते हैं कि चलिए यहाँ से एक थ्योरी या एक लाइन निकल सकती है। फिर हम और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करके उस थ्योरी को थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसमें वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, और उस वेरिएबल को फिर हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। फिर हम एक स्टैटिस्टिकल मॉडल डिफाइन करते हैं, और उस मॉडल में उस डेटा को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ये मैं बड़ा जल्दी कह गया, लेकिन थोड़ी देर में मैं इस बात को काफ़ी क्लियर भी कर दूंगा। आपके अगर कमेंट्स आते रहे तो मुझे पता चलता रहेगा कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है या नहीं, या फिर आप क्लियरली कुछ हो रहा है या नहीं। तो मैं देख सकता हूँ अभी हमारे मित्र जो ज्वाइन किए हैं, आई कैन सी यू आर वॉचिंग, but if you can put some comments as you're watching, so as I said, those physical cues which are lacking for me, I can see that, because talking to a blank screen is very difficult. As teachers, you can understand, you're not even sure that as I was telling earlier in the morning, you're not even sure whether your joke is working. So please keep on writing on the can I get any kind of quotes which can tell me that everything is working fine? Yes, thank you, Suku, thank you so much. So basically, there are the back screen is Roma is not clear. I know, because I can see that very clearly. I don't know why, because on my screen I can see that so very clearly. Probably it has to do with the mobile connection somewhere, because on my screen it's very clear. Anyway, so basically, there are 2 or 3 important. So do you want me to avoid that particular screen? Okay, so basically we have some goals. One of the goals is describing the population. I'll just talk about description, क्योंकि यहाँ पर भी मीन मीडियन का एक डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बताऊंगा। और फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पर हम कोरिलेट या फिर पॉपुलेशन प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वी वांट सम काइंड ऑफ अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट्स वेयर कॉज एंड रिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, बार बार सुना होगा आपने। आज यहाँ पर हम इस बात को थोड़ा और ज़्यादा
clear करेंगे what do we mean by suggesting that correlation is not causation. Maybe we are trying to describe population, what's happening. So maybe for example of the 50 odd people who are there on Facebook live right now, we might try and find out अरे भाई चलो सबका एवरेज एज क्या है, उससे हमें एक डिस्क्रिप्शन मिलता है कि दिस इज द काइंड ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज द काइंड ऑफ द people who are there present at the moment. So that gives us some idea of the population. So if we are trying to describe some kind of situation, or if we are trying to describe some phenomenon, then our data collection will be different. But if we are trying to infer from those statistics, then the data collection will be even more different. Now that's very important, because we will be talking about things like independent and dependent variables. Now without any further ado, I'll straightway go to first of all talk about independent and dependent variables, and then I will talk about the various scales. अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसका हम डेटा कलेक्ट करते हैं. D फॉर डिपेंडेंट, D फॉर डेटा. डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल हुज डेटा वी वांट टू कलेक्ट. अब मान लीजिए हमारा ये अगर हाइपोथेसिस है कि बंदे का जितना एज बढ़ता रहता है, द ओल्डर यू ग्रो द हैप्पियर यू बिकम. हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज हैप्पीनेस. I am trying to measure happiness, that how happy people are, and I will have some construct of measuring that happiness. I will manipulate my independent variable and try and find out the effect on the dependent variable. Now just think of these two very different situations. If it is an experimental work, then of course I am being able to manipulate it directly. I can change, but in this case of age I can't change it directly. किसी को बड़ा और छोटा तो नहीं कर सकते ना, तो हमको अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेंगे. लेकिन अदरवाइज हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट में, और फिर हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका क्या असर हो रहा है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो डेटा है जिसको हम कलेक्ट करते हैं. इंडिपेंडेंट डेटा जो है हमारे पास है. अगर वो एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है, तो वहां पर हम उसे प्रेडिक्टर या फिर आउटकम वेरिएबल कहना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा. इस स्लाइड में जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो आप तक शायद क्लियर नहीं पहुंच रही, वहां पर बता रहा हूँ मैं कि टर्म्स प्रेडिक्टर वेरिएबल और आउटकम वेरिएबल काफ़ी जनरली यूज़ किया जाता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसका पॉजिटिव रोल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, विच डिपेंड्स ऑन द कॉज. तो ये once we are clear with this kind of an idea, then a lot of things will become much easier. That I am changing this, and then what is the change on the other. But again, two things that I said here. One, if it's an experimental research, then I'm directly changing the independent variable. वो quantitative या qualitative दोनों ही हो सकता है. हम उसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है, या फिर हम उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्वालिटी ही चेंज कर रहे हैं. जनरली क्लिनिकल रिसर्च वगैरह में ये ज़्यादा काम आता है. तो बट अदरवाइज जो मैं आपको पिछला वाला जो एग्जांपल बता रहा था, एज और हैप्पीनेस वाला, यहाँ पर हम अलग अलग एज के लोगों का एग्जांपल लेते हैं और फिर उनका हैप्पीनेस स्टडी करते हैं. और विच आई वाज टेलिंग यू ऑलरेडी दैट आई मस्ट हैव सम काइंड ऑफ अ टूल फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी टू फाइंड आउट अबाउट हैप्पीनेस, और आई कैन क्रिएट अ कंस्ट्रक्ट फॉर हैप्पीनेस एंड मेजर. ओके, अगर ये 10 साल का बच्चा है तो इसका हैप्पीनेस मान लीजिए इतना है, अगर ये 20 साल का है तो इसका इतना है, अगर ये 70 का है तो इतना है. अगर हम ये देखते हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ कोरिलेशन, जो कि मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाला हूँ, then we can say there is a positive correlation, etc, etc. But I must know what is my independent variable and what is my dependent variable. Dependent variable D, जिससे मुझे डेटा मिल रहा है, और जिसको मैं चेंज करके डेटा पर उसका इफेक्ट जानने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज माई independent variable. So independent and dependent, let's get that very clear. We'll be using that more often. In this screen, I'm not sure how you can see that, but what I'm trying to suggest here is levels of measurement. अब
जो हमारे पास the items that we are measuring, what are its levels. Suppose I am talking about people from different states, कि ये बंदा तेलंगाना का है, ये आंध्रा का है, ये तमिलनाडु का है, ये कर्नाटका का है, ये बंगाल का है, ये हरियाणा का है, ये पंजाब का है. अगर हम कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर जस्ट डिस्टिंक्शंस. वहां पर देयर इज नो ऑर्डर या फिर कोई नंबर भी नहीं है. दे आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. There is no kind of relation between the variables, and I can't say that this one is bigger or this is smaller, etc., etc. So the variables which are made up of categories are known as categorical variables. Variables, if are of two categories only, then we say that it is a binary variable. It can be yes or no, it can be true or false, it can be male, female, it can be anything. So if the categories are only two, then we say that it's a binary variable. Now again there is another area जहाँ पर हम थोड़ा सा कभी कभी confused हो जाते हैं कि भाई categorical क्या है, nominal क्या है, and often it is used interchangeably. हम जब categorical यूज करते हैं तो कहते हैं कि वो nominal है, और जब nominal यूज करते हैं तो categorical है. डिफरेंस का ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस थोड़ा सूक्ष्म है. In nominal we use numbers to describe the categories. ये नंबर का कोई ऑर्डर नहीं है, बस ये नंबर को हम डिस्क्राइब करते हैं. वी आर जस्ट यूजिंग द नंबर्स टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर. इट कुड बी जस्ट योर आईडी. माय आईडी कुड बी 7001, योर कुड बी 7002, बट देयर इज नो ऑर्डर. इट डजंट मीन दैट योर आईडी और योर आधार नंबर इज हायर देन माय आधार नंबर. दे आर जस्ट कैटेगरीज. So when we use nominal scales, we are basically describing categorical scales in terms of numbers. And that's a very important distinction to make, that in these things the numbers are not important. The numbers are just merely there to distinguish one category from another. Now when we go one level up than categorical and nominal, because categorical, nominal and binary, they are of almost the same order. Binary is slightly lesser because binary means only two distinct categories. बाइनरी का मतलब है सिर्फ दो ही कैटेगरीज, या यस या नो या ट्रू या फॉल्स या फिर मेल फीमेल या कुछ भी, दो ही कैटेगरीज हैं. इसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल, जहां पर रैंकिंग होती है, गुड बेटर बेस्ट, या फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक. देयर आर मेनी प्लेसेस जहां पर रैंक होता है. वी रैंक दैट ये स्केल बड़ा है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये. दीज आर ऑर्डिनल स्केल्स. ये जितनी तीन चार स्केल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब है डिसकंटिन्यूअस. दे डोंट हैव कंटिन्यूटी अमॉन्ग देम. अगर एक और दो के बीच में कुछ भी नहीं, या एक है या फिर दो है. तो वी हैव द कैटेगोरिकल स्केल, वी हैव द नॉमिनल स्केल, वी हैव द बाइनरी स्केल, एंड वी हैव द ऑर्डिनल स्केल, जहां पर सिर्फ रैंक्स इंपॉर्टेंट है, जहां पर नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड देन वी कम टू व्हाट इज नोन एज द now I'll just take a small detour and just please let me see whether you can see this one, the Likert scale. Is this visible on the screen? What I'm trying to show here is a Likert scale. जहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है आई स्ट्रांगली अग्री, 2 नंबर पर लिखा हुआ है डिसअग्री, 3 पर लिखा हुआ है नाइदर डिसअग्री नॉर अग्री, 4 पर है अग्री, 5 पर लिखा हुआ है स्ट्रांगली अग्री. These scales were developed by Rensis Likert as part of his PhD thesis long years ago. We take these Likert scales not as ordinal variables. अभी मैंने आपसे कहा कि ऑर्डिनल वेरिएबल्स में रैंक होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. लेकिन यहाँ पर अगर हम लाइकर्ट स्केल की बात करें तो लाइकर्ट स्केल हम रैंक के हिसाब से नहीं देखते हैं, हम इसे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के तरीके से हम इसको देखते हैं. Now it's very important to understand the distinction between continuous and discontinuous variables, because many of the parametric tests that we'll be talking about, they are dependent on these tests. Continuous variables are either interval variables or they can be ratio variables. इंटरवल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूटी है, और दूसरी बात ये कि 1 और 2 में जो डिफरेंस है और 4 और 5 में जो डिफरेंस है वो लगभग बराबर है, या फिर 1 और 2 और 2 और 3 में जो डिफरेंस है वो लगभग बराबर है. तो इसी का ही मतलब होता है कंटिन्यूअस. नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस अबाउट
many of the tests that we talk about, they are based on parameters. They are based on the idea. We can change Likert into categorical scale. Yeah, we can, but that would mean, we will be losing out on a lot of the tests. So by the time I come on to that thing, I will come to that. Thanks Manisha for the question. I would love to have questions as I go along. Of course, we can change that into categorical. There are certain issues with categorical scales, and I'll come to that. Now, we consider them as interval scales because it helps me to do a lot of statistical tests that I want to derive. Say, for example, correlation, etc. They are based on these parametric categories. I'll discuss about all that. तो कंटिन्यूस वेरिएबल मैं बता रहा हूँ दो तरीके का होता है, एक तो है इंटरवल और दूसरा होता है रेशियो. रेशियो इंटरवल से एक लेवल ऊपर है क्योंकि रेशियो वेरिएबल्स में एक ट्रू जीरो पॉइंट है. कंटिन्यूस वेरिएबल में इंटरवल वेरिएबल में वी माइट नॉट हैव अ ट्रू जीरो पॉइंट, but in a ratio scale we have a true zero point, and that's very important because again as I said, many of the tests or many of the assumptions that we make, हम थोड़ी देर बाद ही ये normality etc ये सब assumption की बात और z जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, this will be a very kind of a quick refresher on your first 6 or 7 chapters of your statistics textbook. So I've tried to condense a lot of these things together because we don't know whether we might never have another Facebook Live ever. So as I said, categorical, ordinal, and then we are talking of interval and then ratio. If we know that, because categorical could be binary, and then we know categorical and nominal are generally same because nominal we are using numbers just to describe the categories. And then we have the ordinal scales where we are talking of ranks, because many of the tests are based on the fact that we are talking about ranks. And then we have interval variables. As I said, we consider Likert scales as interval variables because it allows us to do the parametric tests, because we have to remember about the parametric assumptions. That's very, very important. And then as I said, the difference between ratio and interval is just that in ratio scale, just like you have the Kelvin scale in our physics classes, I'm sure you remember that, there is a true zero. So if there is a true zero in your continuous scale, then you have a ratio scale. Otherwise, we generally deal with interval scales. Now, going back to the measures of central tendency, I will talk about the first two very much. Now, मीन के बारे में तो सबको पता ही है. मीन तो बड़ा आसान है, बड़ा इजी है. अब मान लीजिए अगर हम आज यहाँ पर अपने जो मैं बता रहा था about 50 odd people who are on Facebook Live right now, अगर हम सबका इनकम का मीन निकालते हैं तो मान लीजिए लगभग ऐसा आता है, मानने में क्या अर्ज है, सबका हमारा एवरेज है 1 लाख रुपए प्रति माह हमारा मीन है. बड़ी अच्छी बात है. लेकिन अचानक किसी वजह से शायद हमारा ट्रेलर देखा उसने और सुबह देखने के बाद मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर आ गया और वो हमारा मेंबर बन गया यहाँ पर, वो भी बैठकर ये देख रहा है फेसबुक लाइव. अचानक 1 मिनट के अंदर में हम सबका एवरेज जो है करोड़ों बढ़ जाएगा. जो 1 लाख रुपए था अभी 10 सेकंड पहले, अचानक एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो बहुत ही ज्यादा धनवान है, तो फिर हमारा मीन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. उल्टा भी हो सकता है ये, और ये किसी भी केस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो मीन हैज अ प्रॉब्लम विथ आउटलायर्स. या कोई बहुत ज्यादा एवरेज से दूर है या फिर दोनों तरफ कम है या ज्यादा है, तो वो अफेक्टेड हो जाता है. इस कारण मीन इज नॉट अ वेरी गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इफ वी आर डीलिंग विथ वेरिएबल्स व्हिच हैव लॉट ऑफ वेरिएंस. और ये वेरिएंस की भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. In fact, the entire statistics is based on variance and covariance, etc., etc. अब हम आते हैं मीडियन पर. मीडियन बड़ा आसान है. मीडियन ये बताता है, अगर मान लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 50 हमारे जो दर्शक अभी हम लोग साथ हैं, मैं भी, अगर हमारे इनकम हम असेंडिंग ऑर्डर में स्केल करते हैं कि चलिए इनका 50,000 है, इनका 51,000 है, 52,000 है, एटसेट्रा, हम 25वें नंबर पर हम मिड पॉइंट पर, तो वो मिड पॉइंट होगा मीडियन. मीडियन हमें ये बताता है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो दिस वैल्यू एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव दैट वैल्यू. और यहाँ पर
वो मार्क जुगरबर्ग वाला वो समस्या नहीं होता है। यहाँ पर अगर आउटलायर भी आता है तो वो तो 50वां होगा, तो उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि देखिए भारत के पॉपुलेशन का मीडियन एज 25 ईयर्स है, इसका मतलब ये होता है कि 50% पॉपुलेशन 25 ईयर्स से कम है और 50% 25 से ज़्यादा है। So median generally is a very good measure of central tendency because it is not affected by outliers and it is generally regarded as a very important central point. Central point हम क्यों जानना चाह रहे हैं? Central point इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि central point हमें पूरा population के बारे में एक अंदाज़ा देता है। वो सिर्फ एक फिगर नहीं देगा, उसके साथ साथ हमें और भी measurements बताने होंगे. So that's very deciding on what measure of central tendency to use. Whether we just go with mean, it's okay if we are dealing with a smaller population, or if we are sure that there are no outliers, because these outliers are a very important indicator. They can affect the mean drastically, as I just explained. So that is why we tend to go with the median. And even if we are discussing ordinal scales, etc., median is easier, because if you are using an ordinal scale, then probably the mean doesn't make any sense. और categories हैं तो उसमें तो सिर्फ frequency है और तो कुछ है. So that is a very important area to discuss about the mean, median, and mode. Now I am coming to the most important part of statistics, which is about the variance and the standard deviation. I will again request you to please ask me questions or tell me if there's something wrong or if you want me to repeat something, because as I said कुछ cues तो है नहीं, मैं स्क्रीन पर सिर्फ अपने आप को देख रहा हूँ और आपके कमेंट्स देख रहा हूँ. तो अगर मुझे आपका ये फीडबैक मिलेगा तो मुझे इस पर डिस्कस करने में आसानी होगी. जैसा मैं आपको बताया अभी, मीन है और उसके साथ में हमारे पॉपुलेशन के जो बाकी या फिर हमारे सैंपल के जो बाकी आइटम्स हैं वो इसी मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं. सो अगर मीन से बहुत ज़्यादा दूरी है तो हम ये कहेंगे कि ये जो टर्म हम यहाँ पर बता रहे हैं डिस्पर्शन, सो डिस्पर्शन इज लॉन्ग, डिस्पर्शन इज क्वाइट, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पर्शन. अब इसका मतलब समझना पड़ेगा. हम स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट करते हैं पहले सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स. मीन से कितनी ज़्यादा दूरी है. अगर मीन एज अगर हम मान लेते हैं आज यहाँ पर 30 साल है, तो अगर कोई 40 साल का व्यक्ति यहाँ पर है तो डिफरेंस है 10 साल का, उसको हम स्क्वायर करते हैं. स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि मीन से कुछ टर्म ज़्यादा होंगे और कुछ कम होंगे. अगर हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो वो दोनों बैलेंस आउट कर लेंगे और वो ज़ीरो हो जाएगा, वो तो हमारे लिए किसी काम का रहेगा नहीं. तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स स्टैटिस्टिक्स का ये शुरुआत होता है ये बताने के लिए, जो हम बाकी 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट आगे बताने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस पर हाउ मच डिस्टेंट दीज थिंग्स आर फ्रॉम माई मीन. अगर मीन से बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर ये सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ज़्यादा होगा, और अगर कम है तो ये कम होगा. लेकिन स्क्वायर करना ज़रूरी है क्योंकि स्क्वायर से ही हमें सिर्फ पॉजिटिव फिगर्स मिलेंगे. अगर इस स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करते हैं, पॉपुलेशन मतलब हम एवरेज ढूंढना चाह रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिस्पर्शन है, इसको स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहते हैं कितना ज़्यादा वेरिएंस है. तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर से फिर हम वेरिएंस की तरफ आते हैं, और वेरिएंस हमें बताता है कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है. सो ये वेरिएंस मीन से कितनी ज़्यादा दूरी है ये डिसाइड करती है कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा. अगर हमारा आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ 30 साल अगर हमारा एवरेज एज है, मीन एज है, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, तो ज़्यादातर हम ये मानना पड़ेगा कि मीन का 1/3 मतलब काफ़ी ज़्यादा फिगर होता है. तो मीन से स्टैंडर्ड डिविएशन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब पॉपुलेशन डिस्पर्स्ड है, उसका रेंज जो है काफ़ी लंबा है, लेफ्ट टू राइट या फिर छोटे से बड़ा काफ़ी लंबा उसका रेंज है. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन अब थोड़ी देर बाद जब मैं आपको नॉर्मल कर्व्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात बताऊंगा, वहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. बट ये मानने ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि हमारा वेरिएंस कहाँ से आता है, कितने दूरी है मीन से, और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस.
तो ये हमें एक एवरेज बताता है कि इतना ज़्यादा दूर है स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो हम सिर्फ मीन बताना हमारे लिए इनफ नहीं, हमें साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताएगा कि ये हमारा जो भी हमारा पॉपुलेशन है इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है। मीन के साथ अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा स्प्रेड आउट है, और मीन के साथ अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है इसका मतलब पॉपुलेशन एक थोड़े से दायरे में सीमित है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज many as I said this will help us decide a lot of things। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम काफ़ी जब प्रेडिक्ट करने वाले इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, तो इन सब चीज़ों को हमें और ज़्यादा जानना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? आई मीन चलिए तब अब हम दूसरे तरफ चलते हैं। आई एम अज्यूमिंग ये बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन तो हम रोज़ ही पढ़ते हैं, जानते भी हैं, लेकिन कई बार स्पेशली जब हम शुरुआत करते हैं तो ये एक आइडिया क्लियर नहीं होता। ये हमारे लिए ब्लैक बॉक्स है, अच्छा मीन ये स्टैंडर्ड डिवीजन ये एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हमारे लिए सिर्फ एक टर्म है, लेकिन टर्म का मतलब क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और स्टैंडर्ड डिवीजन जानने के साथ साथ हमें ये भी जानना पड़ता है कई बार ये जेड वैल्यू क्या है। अब जनरली मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन तो यूनिट अलग अलग है, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था। अगर हम एज और हैप्पीनेस देखते हैं तो एज का यूनिट अलग होगा, हैप्पीनेस का यूनिट अलग होगा। तो अगर हमें इसे स्टैंडर्डाइज करना है, अगर हमें इसे एक ऐसा जगह ले जाना है जहाँ पर हम एक सिर्फ फिगर के थ्रू बता सकें, तो उसे हम कहते हैं जेड वैल्यू। और जेड वैल्यू जनरली क्या होता है? जेड वैल्यू होता है हम उस आइटम को, उस बिंदु को हम मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें जेड वैल्यू मिलता है। अब जेड वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस 3-4 मिनट में आप मेरे साथ इस बात पर इत्तेफाक रखेंगे। ये जब हम when we talk about normal curves, that these z values are very very important when we have to talk about predictions. So let's talk about first of all mean, then we talk about the standardization, because we will be talking about normal distributions, and normal distributions are important not only because उनका बड़ा बढ़िया दिखता है या फिर वो एवरेज है या फिर वैसा होना चाहिए, लेकिन उससे हम काफ़ी कुछ predictions कर सकते हैं। That is why our normal curve or the bell curve that we're talking about is important. चलिए बेल कर्व भी देख लेते हैं। बेल कर्व लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नॉर्मल कर्व है, और ये राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में ये जो है आप देखते हैं तो दिस इज द पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। इसका जो ये पीक है ये उस तरफ में झुका हुआ है, अगर ये इस तरफ झुका रहता उसे हम नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। तो ये है नॉर्मल, आप सबको पता है क्योंकि ज़्यादातर फिगर्स आप देखेंगे बीच में है, इट्स देयर इन द सेंटर, it's centered around one particular value, and then it tails off in the two ends. It never meets the horizontal axis, but it just tails off across the ends, and that is what a normal curve is. Most of the statistical approximations that we're going to talk about is based on this particular normal curve. अब चूंकि हम नॉर्मल कर्व चाह रहे हैं, इसका मतलब तो ये नहीं कि हमें हमेशा नॉर्मल कर्व मिलेगा ही, तो हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन करना होगा, वहाँ पर ये जेड वैल्यू हमें काम आने वाला है। नॉर्मल कर्व का सबसे बड़ी उसका जो फ़ायदा है, अब ये अगर शायद आपके स्क्रीन पर क्लियर नहीं आ रहा होगा फॉर वॉट एवर रीज़न, व्हेन वी हैव अ कर्व और व्हेन वी हैव अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लाइक दिस where the mean is 0 and the standard deviation is 1, then this curve provides me with certain possibilities. जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, z वैल्यू जब हम क्रिएट करते हैं, z आपको मैं बताया था वो मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे z को तो उसका मीन 0 ही आएगा और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है। तो ये हमें एक कर्व मिलता है जिसे हम बेल कर्व कहते हैं। एंड नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ statistics. Why? Because in inferential statistics this normal curve allows me to make certain predictions. Now again I'll kind of ask someone to just let me know whether you can see this one clearly, because I just want to make 2 or 3 small assumptions about this curve before we go ahead. Can just someone write on the screen whether you can see this clearly or not? Now what this normal curve means is something very important.
what this means is that अगर मीन से हम एक स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे और एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर, if I see one standard deviation less and one standard deviation more, ये एरिया जो है, this will provide me 68% of the population. 68% of the population will fall between plus and minus 1 standard deviation, and that is why we need this, because we can make predictions about the population based on the normal curve. Now if you see -2 to +2, now that again is very important. Almost 95% of the population, little more than 95% of the population falls between -2 standard deviations and +2 standard deviations. So plus and -2 standard deviations के बीच में हमारा 95% population आने वाला है. और अगर हम 3 standard deviation तक लेफ्ट और राइट जाते हैं, if we go 3 standard deviations, if you see this carefully, then if you see this area, because the area gives me the probability. This tells me, for this probability density curve, the area tells me the probability of something, not a particular point. So here you can see 68%. 68% of the population is between -1 and +1 standard deviation. Now again, you go slightly +2 and -2, 95% of the population. And -3 and +3, 99% of the population. तो अगर हमें मीन पता है और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, तो हम सेफली, और अगर हमारा if our data is normally distributed, we can safely, not just say, because we can prove that 99.7% of our population will be between plus and -3 standard deviation. So isn't it almost magical that we just know 2 figures and we can make assumptions, or we can make clear predictions about the entire population? And that is the beauty of statistics, that is the beauty of numbers. I mean, this is the magic that we were talking about this morning. So we just have to know the mean, we just know the standard deviation, and if we are clear that our population is a normal curve, और ये normal curve अगर नहीं है तो हमने अभी भी बताया, if we have those, I'll just make that example just again in my next slide once more. But if I have these curves, then I can safely say that this much of my population is between this and this value. And that's a very important thing in statistics, suggesting what are the values within which my population belongs. Now that's why we talk about standard deviation, that's why we talk about normal curves, that's why we keep on talking about these terms again and again. Now I'll try and confuse you a little further, not confuse you, remove your confusions about standard deviation and standard error. Now this is one term that we keep on forgetting. जैसे कई टर्म है वो तो कई साल स्टेटिस्टिक्स लग जाते हैं ध्यान करते, जैसे टाइप 1 टाइप 2 एरर. अचानक किसी को पूछा जाए टाइप 1 टाइप 2, बहुत एक्सपीरियंस स्टेटिस्टिशियंस भी तुरंत ऑफहैंड नहीं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, यार टाइप 1 है या टाइप 2 है. सो द सेम विथ स्टैंडर्ड एरर. Now we have just spoken about standard deviation. Welcome Professor Sanjeev Bhanawat. I'm so happy that our teacher is here. I owe a lot of my Hindi speaking to Professor Sanjeev Bhanawat. So welcome Professor Bhanawat sir. अब ये ऊपर हम देख रहे हैं, ये पॉपुलेशन से हम सैंपल्स लेते हैं. मैं ये कर रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर है, ये पॉपुलेशन है, और ये नीचे में ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये है सैंपल्स. ऊपर में म्यू लिखा हुआ, ये आपको दिखाई नहीं देगा, बड़ा छोटा लिखा हुआ. पॉपुलेशन का एवरेज लिखा हुआ है 3. लेकिन जब हम सैंपल्स लेते हैं, सैंपल का एवरेज हर वक्त 3 नहीं होगा, क्योंकि सैंपल हमेशा रिप्रेजेंटेटिव या फिर एग्जैक्ट वो करता है. किसी सैंपल का एवरेज 3 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 2 है. So all our samples drawn from our population will have, wow, welcome Professor Jatin. Good evening, sir. I'd heard your wonderful lecture, and we have built upon that as well. So the sample means may not necessarily be equal to the population mean always. ये जो सैंपल मीन है ये थोड़ा डिफर करेगा. हम जितने ज़्यादा सैंपल लेंगे वो उसके मीन उतने अलग होंगे.
चूंकि इसके मीन अलग है, इस सारे सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन भी अलग होंगे, राइट? If the means are different, the standard deviation of these samples which are drawn from a population, they will also be there. So the standard deviation of these sample means drawn from a population, the standard deviation of these sample means is known as the standard error. That's a very important distinction. Here I'm talking about these sample means. I've drawn about 9 different samples from the population, and all these 9 different populations, they have different means, and they have different standard deviations. Now if this if we take the standard deviation of all these means, we have the standard error, and if you see carefully, if we have a distribution of that, we get a normal distribution there. Now a very important thing, a very important theory of statistics, which is the central limit theorem. I don't want to confuse it with too many theories, because the concepts are what is important. If we just if we take sufficiently large random samples from the population, then the distribution of the sample means will be approximately normally distributed. अगर हम बहुत ज़्यादा मीन्स लेते हैं, तो वो जो मीन का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, distribution of the means, then that distribution will be also a normal curve, and we know the advantages of this normal curve, because that normal curve makes me it makes easier for me to make all those predictions. We just made those predictions that if it is plus minus 1 standard deviation, 68%, if almost plus minus 2, little more than 95%, plus minus 3, almost 99 and a little more. So this thing is a very important thing. I've just explained about standard error. Now before we get on to the next topic now. So we are through with the earlier part. We are now going to talk about here. Now why I'm going to talk about this is because we have to be very careful about the null hypothesis, significance testing, and the limitations of the p-value. I mean जनरली हम क्या करते हैं, अब ये तो काफ़ी इजी है. हमारी एक नल हाइपोथेसिस होती है. नल हाइपोथेसिस ये होती है कि कोई इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है. जो मैं आपको पिछला एग्जांपल बता रहा था, एज और हैप्पीनेस वाली बात, इसमें नल हाइपोथेसिस ये होती है कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है. देयर इज नो इफेक्ट विद इन दीज टू आइटम्स. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका उल्टा है कि नो देयर इज समथिंग देयर. अब हम नल हाइपोथेसिस को लेकर स्टार्ट करते हैं और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं. अब ये एक फिगर जो 0.05 या फिर 5% पॉसिबिलिटी वाला जो फिगर है, ये बड़ा ही आर्बिट्ररी है. 3-4 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये दिस इज़ वेयर लॉट ऑफ पीपल that's one indicator how people will distinguish between a good statistician and not such a good statistician. अगर आप सिर्फ p वैल्यू की बात करते हैं, तो आप एक you are doing injustice to yourself, क्योंकि उसमें 2-3 दिक्कत है. वो दिक्कत क्या है, वो मैं बस आपको थोड़ी देर अगले स्लाइड में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम नल हाइपोथेसिस को लेकर स्टार्ट करते हैं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ये होता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है. और अगर हम ये देखते हैं कि 5% से कम इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, तब हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में नल हाइपोथेसिस माइट नॉट बी करेक्ट, बिकॉज नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि देयर आर very sophisticated inferences to be drawn there. So हम ये कहते हैं within these conditions the null hypothesis cannot be accepted, and probably we gain confidence in the alternative hypothesis, कि हम जो बता रहे थे कि एज के साथ हैप्पीनेस बढ़ता है, शायद वो सही होगा. नल हाइपोथेसिस काम नहीं है. अगर हम क्लिनिकल टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें दूसरी हो जाती हैं. अगर हम अपना सोशल साइंस के टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें दूसरी रहती हैं. तो हमारा सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होगा, ये 5% होगा या 1% होगा, ये डिपेंड करता है. कई सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम होनी पड़ती. तो 5% का मतलब ये है कि देयर इज अ चांस दैट मैं जिसको कह रहा हूँ कि इफेक्ट नहीं है, लेकिन
I might get a type 1 error which is a false positive. वहाँ पर इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इफेक्ट ये है. अब ये बड़ा क्रूड सा एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स क्लासों में बताया जाता है, कई जगह बताया जाता है कि अरे भाई मैं ये बायोलॉजिकल टेस्ट किया और मैंने ये बताया कि यार ये मेल जो है ये प्रेग्नेंट है, तो दैट इज अ फॉल्स पॉजिटिव. ये तो हो ही नहीं सकता है. तो ये फॉल्स पॉजिटिव इज अ वेरी ट्रिकी एरिया, जहाँ पर पॉजिटिव नहीं है लेकिन हम अज्यूम कर ले रहे हैं पॉजिटिव है, क्योंकि हमने अपनी प्रोबेबिलिटी को 5% रखा है. किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को? नल हाइपोथेसिस को, या हमारा नल हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं, इसको हम 5% प्रोबेबिलिटी के नीचे जब होता है तब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, और 5% से ऊपर होता है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है. तो ये टाइप 1 एरर बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना. इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ, फॉल्स पॉजिटिव. तो FP मैं इसको याद करके रहता हूँ. FP मेरे लिए याद करना इजी रहता है, क्योंकि मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ उसका इनिशियल FP होता है. तो मैं याद कर लेता हूँ भाई, टाइप 1 होता है फॉल्स पॉजिटिव. टाइप 2 एरर होता है फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स नेगेटिव एक अगर क्लिनिकल टेस्ट हो रहा है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है. उस बंदे को कोविड-19 है और आपने टेस्ट करके बता दिया कि भाई उसे कोविड-19 नहीं है, तो ये तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी. लेकिन सोशल साइंस के केसेस में फॉल्स नेगेटिव इतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते. सो इट डिपेंड्स एज आई सेड ऑन द टेस्ट. तो ये अल्फा और बीटा, ये फॉल्स पॉजिटिव और ये फॉल्स नेगेटिव, नल हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं, या फिर नल हाइपोथेसिस ठीक है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या फिर उसको निगेट कर रहा हूँ. इसके ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि ये टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है. तो अगर हमारा P वैल्यू 0.05 है, इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोबेबिलिटी हमने 5% पर कह रखी. अगर 5% से हमारी कम प्रोबेबिलिटी आती है तब हम ये कहते हैं कि भाई हमारा नल हाइपोथेसिस माइट नॉट बी करेक्ट. अगर 5% से ज़्यादा आती है तो हम ये कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है. तो हमने 5% का कह रखा, लेकिन वो 5% भी तो अगर बाई चांस हमने कलेक्ट कर लिया तो वो फॉल्स पॉजिटिव मिलने का वहाँ पर समस्या रह जाता है. तो ये अल्फा और बीटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. बीटा जो फॉल्स नेगेटिव वाला है, बीटा हम 0.2 जनरली स्टैटिस्टिशियंस लेते हैं, और फॉल्स पॉजिटिव वाला हम 0.05 लेते हैं. हम ये यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं कि इसमें इफेक्ट है. ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम ये बता रहे हैं कि ये जो हमने 2 क्राइटेरियन डिसाइड की, एज और हैप्पीनेस, हमने ये कह रहे हैं कि इसमें इफेक्ट है, हाँ या ना का जवाब दे रहे हैं. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इफेक्ट है, द इंटेंसिटी ऑफ द इफेक्ट, the effect size. Unless we decide on the effect size, unless we are clear about the effect size, p values are not just significant. Effect है, बहुत ही थोड़ा सा इफेक्ट है, बहुत ही हल्का सा इफेक्ट है, तो फिर वो स्टेटिस्टिकली हम सिग्निफिकेंट तो बता रहे हैं 5% एटसेट्रा पर, लेकिन उसका कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं बनता. जब मैं कोरिलेशन की बात करूंगा जस्ट 2-3 स्लाइड बाद, तो ये फिर इफेक्ट को मैं थोड़ा और ज़्यादा क्लियर बता दूंगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो वेदर वी नो द इफेक्ट साइज. हम पावर बताएं, जो मैं अभी टाइप 2 एरर बता रहा था जिसको हम बीटा कहते हैं, बीटा को हम 20% पर रखते हैं. तो जनरली पावर हमें 80% चाहिए रहता है, और इफेक्ट साइज हमें कम से कम 10, 20, 30% के ऊपर रहे, तभी इफेक्ट साइज इंपॉर्टेंट है. नहीं तो फिर सिर्फ हल्का सा इफेक्ट है और हम सिग्निफिकेंस टेस्टिंग पर है. We can't control. Yeah, there are two. There are two. So what we do is we put the type 2 error as 0.2, and beta we put as a 0.2, and alpha we generally put as 0.05 or 0.01, or at times even 0.001. So these are the benchmark things. We do not want to go, and they affect one or the other. If I bring alpha too low, then my beta will rise, or if I try and bring my beta too low, my alpha will rise. There is no kind of a straight relation, but one thing leads to the other. So that's a very important question. Thanks for the questions, because they help us. So as I said, ability to find an effect is the is the statistical power. So अगर हम उसको 0.2 लेते हैं तो हमारा 0.8 या फिर 80% आता है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो पी वैल्यू के साथ साथ बतानी है, और अगर हम बता रहे हैं तो हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट इनकम्प्लीट है, और ज़्यादातर जर्नल्स उसको रिजेक्ट भी कर देंगे. आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बताना है कि विथ कॉन्फिडेंस हमारा ये 95% ऑफ द वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, हमारा लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है, या फिर इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मीन, देन 95% ऑफ द मीन विद इन वन वैल्यू एंड द अदर.
So 95% confidence interval हमें बताना होता है. So it gives researchers important indicators. क्योंकि अगर मान लीजिए मैं रिसर्च यहाँ पर बंगाल में बैठकर कर रहा हूँ और अगर आप उसको राजस्थान में बैठकर रेप्लिकेट नहीं कर पाए तो ये रिसर्च बेकार है. आपने उसे फॉल्सिफाई किया ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पर एक इसमें साइकोलॉजी वाले लोग काफ़ी इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि पी वैल्यू हैकिंग, हमें किसी ना किसी तरीके से कुछ सैंपल्स को हमने हटा दिया, कुछ सैंपल्स को ले लिया, कुछ कम कर दिया, पी वैल्यू किसी तरीके से 0.05 कर लिया एंड देन यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. पी वैल्यू पर सिर्फ डिपेंड करना है कि ये 0.5 अगर आ गया हमारा, चलो ठीक है जीत गया मैं, यूरेका. ये इनफ नहीं है, क्योंकि पीपल हैव फाउंड आउट दैट इसका समस्या बढ़ जाता है. सो दैट इज व्हाई लॉट ऑफ all our statistics researchers are required to report both all these three things: the p values, the confidence intervals, and the effect size. I'll just talk about effect size when I talk about correlation research. So it's important that I talk about the confidence intervals, the lower and the upper bound of the 95% of the population. So this is where it is important. Because if we are not doing that, then probably our research may not be replicable, and it might not be reliable. So reliability और validity की बात आज नहीं करता हूँ, क्योंकि as I said काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करने को है. तो मैं जस्ट एक रिवाइंड जैसा करता हूँ. पहले तो मैंने आपको स्टार्ट किया था talking about those centrality things. Then we spoke about the levels of measurement. Then we spoke about the Z values. Then we had about the normal curves, and how those normal curves help us predict the population. क्योंकि अगर वो normal है तो वो हमें कई चीज़ें help करता है, अगर normal नहीं है तो कई चीज़ें help नहीं करता. So this is important, and this is very very important, and that is why we put this in the trailer as well. Null hypothesis significance testing has its pitfalls. Just p values are not enough. We have to report confidence intervals. We have to report effect sizes. If you're not doing that, then we will not be doing justice to our work. अभी तक तो मैंने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की बात की, नॉमिनल वेरिएबल्स की बात की, इंटरवल वेरिएबल्स की बात की, रेशियो वेरिएबल्स की बात की. अब तो मैं फिर आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करने लिया यहाँ पर. तो मैं फिर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की बात कर रहा हूँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कुछ देर पहले मनीषा ने एक क्वेश्चन पूछा था कैटेगोरिकल वाला. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम बहुत ये सब टेस्ट करते हैं, मैं टी टेस्ट और एनोवा और कोरिलेशन की बात करूँगा जस्ट कुछ देर में, तो वहाँ पर हम देखेंगे वी आर अज्यूमिंग a lot of conditions. At least 4 conditions are being assumed on those parametric tests. They are parametric tests. Parameters means when we talk of, say for example, mean or standard deviation, we are talking about parameters. So when we are talking about all those parametric tests, we are making 4 assumptions. First of all, we are assuming that my data is at least interval. If it is not interval data, then I will not be able to do all the tests that I speak about. I will not be able to perform the t-test. I will not be able to perform the ANOVA test. I will not be able to perform the correlation, etc., etc. So that's the first requirement for parametric tests. The second is that my data should be normally distributed, or at least that is an assumption. The third and very important is something known as homogeneity of variance. I'm sure you remember variance from about an hour back. The distance from the mean, कितना ज़्यादा distance है. Variance से फिर हम standard deviation में आए थे. So ये जो variance है, mean से जो difference है, ये okay, yeah, Manisha. Basically, categories. Again, I will repeat. Thank you for the question. Thank you. कैटेगरीज है जहाँ पर हम सिर्फ कैटेगरीज की बातें करता हूँ. मैं बंगाल से हूँ, आप यूपी से हैं, वो अमेरिका से हैं, वो राजस्थान से. ये कैटेगरीज हैं. अगर इस कैटेगरीज में हम सिर्फ नंबर देते हैं जिसका कोई अपना वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, आधार नंबर हमारा जैसा, वो नंबर का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, तो वो नॉमिनल होता है. और अगर हम उस पर रैंक देते हैं तो वो ऑर्डिनल होता है. और अगर वो कंटिन्यूस है, मैंने आपको लाइकर्ट स्केल में बताया, उसको हम ये अज्यूम कर लेते हैं दे आर कंटिन्यूस, सो दैट दे आर इंटरवल वेरिएबल्स. और अगर इंटर वेरिएबल्स में 0 एक वैल्यू है, सो दैट इज इफ दैट इज अ ट्रू 0, देन दैट्स अ रेशियो वेरिएबल. 4 scale. So for parametric test, the assumption is, first of all,
दे आर एटलीस्ट इंटरवल मीन्स कंटिन्यूअस, 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर है। दूसरा नॉर्मल है। तीसरा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, द वेरिएंस इज होमोजेनस, वेरी कर रहा है वहां पर नहीं कर रहा है, अक्रॉस द पॉपुलेशन वो वेरिएंस इज होमोजेनस। एंड फाइनली वी आर अज्यूमिंग दैट द our observations, they are independent, they are not they are not related to you're welcome, thank you for the question, please keep them coming, so I know that there are people watching. So these 4 assumptions are very important, and if we do not satisfy these assumptions of normality of at least an interval scale, interval या ratio दोनों चलेगा, homogeneity of variance, and finally independent means they are not dependent on each other for being selected in that particular sample. Now I'll go to the correlation part. I'll try and finish it off in maybe another 10 minutes because we've been going on for around almost 70 minutes. So I'll try and finish it off after talking about the correlation, the t-test, and the ANOVA and the chi-square. Okay, so we'll talk about 4 tests, and just to explain what all this means. Now, just going back to, as I said, most of our statistical tests are dependent on the variance. How much is it? How far is it from the mean? Whether it decreases from the mean or whether it increases from the mean. अगर वो मीन से ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। सो अगर इफ देर आर 2 indicators, if there are 2 variables which deviate from the mean in the same direction, if there are 2 variables which deviate from the mean in the same direction, age or happiness, both of them increase from the mean as you go ahead. जितना ज़्यादा एज बढ़ रहा है उतना ज़्यादा हैप्पीनेस बढ़ रहा है, तो वी विल से दीज आर correlated, they co-vary. In fact, correlation is का next step आता, we say they are varying collectively, they are co-varying, varying with each other. Co is the term that we use when things happen with along with each other. अगर हम इस co-variance को standardize करते हैं, standardize करना मतलब जहां पर भी अगर आप standardize सुने इसका मतलब है उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं। जब हम z को भी हमने स्टैंडर्डाइज किया था उसको हमने स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर हम इसको जब कोवेरिएंस को स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कोरिलेशन। इसका फ़ायदा ये है कि कोरिलेशन में फिर हमें कोई यूनिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू, क्योंकि फिर आप देखिए अगर एज है तो एज तो ईयर्स में आता है, हैप्पीनेस है वो तो किसी स्केल किसी और यूनिट में आएगा, कोई भी हैप्पीनेस यूनिट आप समझ लीजिए। तो कोवेरिएंस है तो फिर वो अलग अलग यूनिट्स में है, लेकिन जब हम इसके उसी के स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और फिर कोई यूनिट नहीं रह जाती। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हैज अ वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1. +1 मीन्स देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन and -1 means there is a perfect negative relation. It's very, very important. But it's very important to understand that this correlation does not mean causation. That does not mean that this variable has caused that. For that we would need an experimental test. Why do we need an experimental test? Because there is a possibility of many other variables जिसे तो हमने consider ही नहीं किया. Age और happiness के बीच में और variables है, we haven't even considered it. So just to suggest that this is caused by this, we will have to control it. So अगर experiment होता है तो वहाँ पर एक control group होता है जो हमें ये help करता है कि our the confounding variables are taken care of. So correlation is not causation. Please understand that, and that's very important for journalists. That's very important for everybody else. Correlation does not mean causation. To have certain other factors, it has to assume that all the other intervening variables are absent. So when we are talking about correlation, we are just suggesting that these two variables are moving in the either in the same direction or in the opposite direction from the mean. They are varying from the mean in these two directions. But this this correlation test, if the one that I've just spoken about is for an interval, so it's Pearson's correlation coefficient,
और ये जो कोएफिशिएंट R है, ये जो मैं थोड़ी देर पहले इफेक्ट साइज की बात कर रहा था, इफ यू रिमेंबर द इफेक्ट साइज दैट आई स्पोक ऑफ जस्ट अ मोमेंट बैक, वो जो इफेक्ट साइज थी वो मैंने कहा था आपको कि जब मैं कोरिलेशन डिस्कस करूंगा देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट साइज। और ये जो R कोएफिशिएंट है, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो हमें इफेक्ट साइज हमें बताता है। अगर R 10% स्क्वायर आता है, इसका मतलब है कि 10% इन द वेरिएशन इन दिस वेरिएबल is because of this. So that tells me the effect size. Again, as I said, that's a very important indicator of how strong my effect is. So if we are not talking about the effect size and just talking about the significance values, no, stop it. उसकी वो enough नहीं है. Effect size is very important. अगर effect size बहुत कम है, then probably it might not be statistically that very important. So putting down the effect size is a very important indicator for correlation. If the correlation are categories, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ये आंध्रा के हैं या तेलंगाना के हैं etc. When they are categories, then when we have the cross tabulation or when we kind of try and build up a correlation among them between categorical variables, then the test that we will do is the chi-square test. But when we have intervals, when the data is interval, they are continuous, then I'm talking about this Pearson's correlation coefficient. If they're ordinal, then I'm talking about Spearman. So it could be categorical, it could be ordinal, it could be interval. If it is interval and it is parametric, we have another set of tests. If it is non-parametric, generally non-parametric are of smaller values, because in statistics, if we assume that if the sample is long, the sample is large enough, then we can assume that it is becoming normal. So then we assume that kind of a thing. I think I'll talk about t-test. Suppose there are two groups, maybe boys and girls in your class, and you take their scores on mathematics or whatever, and when you want to find out whether those differences are significant. If those scores are significant, the test you do that is the t-test. T-test is the test for difference between. So if you want to suggest females earn more than males, then you would go for a t-test and find out whether the means, the difference in the means is significant. If we can prove if my t-test is significant at that 0.05 value, then I will say that okay, my test is then I can say that ये जो दो means हैं, इस दो mean में हमारा significant difference है. जहाँ पर भी हमें difference ढूंढना होता है, we will find out the t-test. When there are two groups, we go for the t-test. When there are more than two groups, we go for the ANOVA. ANOVA tells me the whether three or more groups are statistically different. If you have people from three different states and you try and find out whether उनके जो marks है वो different हैं या नहीं है, statistically significantly different है या नहीं है, then we go for the analysis of variance test. So when we have two different kind of variables and we want to find out whether there is significant difference between their means, we go for the t-test. If there are more than two groups, we go for the ANOVA test. So this is one distinction. Why can't we go for different t-tests? Because that would increase the alpha values. So अगर दो ग्रुप हैं, उनके बीच में डिस्टेंस हमें डिफरेंस ऑफ ये टेस्ट करना कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं किसी भी इंडिकेटर पर इंटरवल के, तो वो होगा टी टेस्ट, और नहीं तो फिर वो एनोवा. जैसा मैंने बताया, काई स्क्वायर इज देयर फॉर रिलेशनशिप बिटवीन ए कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. द नल हाइपोथेसिस ऑफ द काई स्क्वायर इज दैट कोई रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता. पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज वो पर्टिकुलर प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं या नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं है. वी स्टार्ट फ्रॉम दैट अजम्पशन एंड देन वी ट्राई एंड फाइंड आउट वेदर दीज अजम्पशंस आर करेक्ट और नॉट. I will probably have to share this particular thing with you. This is a very important flow chart. हमारे पास data type क्या है और हम क्या test कर रहे हैं. That's a very very important assumption that we have to make. First of all, we have to know whether it's parametric or not. For parametric, I have different kind of tests. For non-parametric, I'll have different kind of tests. जैसे ANOVA है, ANOVA का जो related non-parametric test है, Kruskal-Wallis test कहते हैं.
जो स्टूडेंट टी टेस्ट है उसका पैरेलल नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मैन विटनी टेस्ट है. कोरिलेशन का मैंने आपको अभी भी बताया, काई स्क्वायर टेस्ट है. So basically, I have tried to skim through a lot of these areas, and I've tried to give you a kind of a overview of all these statistical terms, starting off with what is variance, what is standard deviation, what are Z values, why are normal curves important, what are those 4 levels of measurement, what are the kind of tests that we generally go for, especially in media and communication studies. So if you can imagine that it's just about 1 hour and 10 minutes, so we could cover almost 6 chapters of statistics in these 70 odd minutes. So you can imagine that these terms are quite simple. So that's it. I'll try and end it. If there's a question, let me know, or if there's a suggestion, just tell me. So we've had a wonderful session so far, I guess. Govinji is there, so is there any question or is there anything you want me to repeat, or shall I call it a day? Okay, so I'll end this here. Thank you so much, everybody. Thanks a lot. Oh, you wanted me to share the chart. Very good. Yeah, it's there. So as I said, it depends on the type of data, whether the data is discrete or categorical, whether it is continuous. So if it is continuous, then we have different kinds of questions. If it is a truly independent variable, then we go for correlation. I haven't spoken of regression, but that's one thing. I've also spoken about this Pearson's correlation thing. If it is non-parametric, I mean if it is ordinal, then we go for this Spearman's rank correlation. If we are looking for, as I said, if you're not looking for equal variance, then you have different sessions. Otherwise, we've spoken about this ANOVA, etc. Thank you so much for being very patient. It was very enjoyable for me. The only thing is that I couldn't get the physical cues that we are used to seeing in classes, and we know that okay, we'll have to concentrate more on a particular topic and concentrate less on other topics, but that's how it is. Yeah, the chart is there on the screen. Thank you so much. So I'll finish this here. Thank you very much.